السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ سورۃ البقرہ کا آغاز ہوتا ہے۔ سورۃ البقرہ نزول کے اعتبار سے 87 نمبر پر ہے اور قرآن مجید میں اس کی جگہ کے اعتبار سے یعنی کہ جو جگہ پہ جس جگہ پر یہ آئی ہے وہ دوسرے نمبر پر ہے اور اس کی آیات 286 ہے اور اس کے 40 رکوع ہے 40۔ آغاز کرتے ہیں سورۃ البقرہ کے لفظی ترجمہ سے اور دیکھتے ہیں کہ ہم ان کو کیسے ان کا ترجمہ معلوم ہوتا ہے ہمیں اور کس طرح سے بریک کر کے ورڈز کا پتہ چلتا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب آئی ہوپ سو کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو اس کا معنی پتہ لگ گیا ہوگا۔ بسمی اللہ کے نام سے، اللہ کے نام، بسم اللہ اللہ کے نام سے، الرحمانی جو بہت مہربان، الرحیم جو بار بار رحم کرنے والا ہے۔ الف لام میم۔ الف لام میم حروف مقطعات ہیں، حروف مقطعات نہیں ہے، یہ بہت زیادہ غلط پروناؤنس کرتے ہیں بہت سارے لوگ۔ یہ مقطعات ہے، میم، قاف، قاف، طا، عین، الف اور تا، مقطعات، ٹھیک ہے، مقطعات نہیں ہے، یہ مقطعات، ٹھیک ہے، حروف مقطعات ہیں جن کا معنی ہوتا ہے قطع کیا ہوا یعنی کہ ٹوٹا ہوا، رشتہ توڑ دیتے ہیں نا، قطع کر دیتے ہیں، قطع تعلق کی، ٹھیک ہے نا، قطع کر دینا، توڑ دینا، الگ الگ کر دینا۔ تو مقطعات کا معنی ہے کہ یہ حروف جو ہیں یہ توڑ توڑ کر پڑھے جاتے ہیں، یہ ملا کر نہیں پڑھتے، ہم ان کو الگ الگ کر کے پڑھا جاتا ہے اور ان کے معنی کا ہمیں علم نہیں ہے۔ ان کے معنی کا علم صرف اللہ رب العزت کو ہے، تو ہمیں اس بارے میں تجسس بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس کا معنی کیا ہے۔ یہاں پہ آپ دیکھتے ہیں کہ جی ذالکہ کا معنی ہمیشہ ہوتا ہے جی وہ، لیکن یہاں پر اس کا معنی کیا جا رہا ہے یہ۔ اب یہاں پر اس کا معنی کیوں یہ کیا جا رہا ہے؟ اس وجہ سے اس کا معنی یہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ آگے جو بہت اہم بات جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ ایک بہت اہم کتاب ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے۔ اس وجہ سے اس کا معنی وہ کے بجائے یہ کیا جا رہا ہے، دیٹ کے بجائے دس کیا جا رہا ہے، صرف اس کتاب کی امپورٹنس کو مزید الیبوریٹ کرنے کے لیے، اس کو مزید اس پر زور دینے کے لیے کہ یہ بہت اہم کتاب ہے۔ الف لام جو لگا ہے اس کو اس میں معرفہ بنانے کے لیے لگا، اور اب پیچھے ہمارے پاس ورڈ رہ گیا ہے کاف، تا اور با، جس کو ہم اردو میں بولتے ہیں کتاب۔ اس کے اوپر جو کھڑی زبر ہے نا جی، کھڑی زبر کا معنی ہوتا ہے کہ یہ الف ہے، ٹھیک ہے، تو اگر ہم اس کو الف کے بغیر لکھیں تو یہ ایسے ہوتا، اس کھڑی زبر کے بغیر اگر ہم اس کو لکھتے تو یہ ورڈ ایسے ہوتا، ٹھیک ہے۔ عربی میں بھی یہی ورڈ ہے اور اردو میں بھی یہی لکھا جاتا ہے، تو یہ ورڈ ایسے ہوتا اگر کھڑی زبر کے بجائے یہاں پر زبر ہوتی، یہاں پہ زبر ہوتی تو یہ ایسے لکھا جاتا۔ ذالکہ یہ الکتاب و کتاب ہے، یعنی کہ کون سی کتاب؟ قرآن مجید، لا نہیں، ریبہ شک، رو یا با ہی اس کا روٹ ورڈ ہے، اسی سے یہ ورڈ نکلا ہے، ریبہ کوئی شک، فی ہی اس میں، فی ایک ورڈ ہے اور ہی ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے، یہ دو ورڈز کو ملا کر ایک ورڈ بنا ہے فی ہی۔ فی کا معنی ہو گیا میں اور ہی کا معنی ہو گیا اس، تو ہم جب اس کو ملا کر پڑھیں گے تو اس میں، ٹھیک ہے، اس میں اس کا معنی پڑھیں گے، اور اگلا ورڈ آتا ہے ہدن، ہدایت ہے، پیچھے ہم نے پڑھا تھا وہی سیم ورڈ، پورا ورڈ یہاں پر آ گیا ہا دال یا، ٹھیک ہے، جس سے اس کا میننگ نکلا ہے ہدن، ہدایت۔ للمتقین، یہاں پر پھر سے وہی جو کل ہم لوگوں نے حرف جر پڑھا تھا، ہم نے کیا پڑھا تھا؟ لام، ٹھیک ہے نا، لام حرف جر ہم نے پڑھا تھا، تو یہاں پہ بھی حرف جر لام آ گیا، وہی کل والی بات جو ہم نے پڑھی تھی، للمتقین لام حرف جر آ گیا، اور یا نون جو اس کے آخر میں آیا ہے جی، یہ یا نون اس کو جمع بنانے کے لیے آیا کہ یا نون بھی نکل گیا اس کے اندر سے، لام بھی نکل گیا اس کے اندر سے۔ اب اس کے پیچھے ہمارے پاس کون سا ورڈ باقی رہ گیا ہے؟ ہمارے پاس رہ گیا میم، تا اور قاف، لیکن یہاں پر میم جو ہے وہ کسی اور وجہ سے ہے، در حقیقت اس کا روٹ ورڈ جو ہے وہ واو اور قاف اور یا ہے، ٹھیک ہے نا، واو قاف اور یا ہے، اس کے اندر واو جو ہے وہ چھپا ہوا ہے، اس کا روٹ ورڈ بنتا ہے واو قاف اور یا، ٹھیک ہے۔ متقین متقی لوگوں کے لیے، ہدایت ہے متقی لوگوں کے لیے، اس کے اندر واو قاف اور یا چھپا ہوا ہے۔ یہاں پہ میں لکھ دیتی ہوں، متقین کے اندر واو، اس کا روٹ ورڈ ہے واو قاف اور یا، ٹھیک ہے، متقین
मुत्तकी लोगों के लिए है, यानी कि परहेजगारों के लिए है। अल्लज़ीना वो लोग, युमिनूना जो ईमान लाते हैं, वो लोग जो वो ईमान लाए, ठीक है। अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात आप लोगों को बताते चलो, यहाँ पर पीछे या है, ये या हमने ये देखा, इसके आगे जो वाव नून लगा है ये इसको जमा बना रहा है। पीछे हमारे पास वर्ड रह गया है जी हमजा, मीम और नून, ये 3 अल्फाबेट्स रह गए हैं। अब जिन अल्फाज के शुरू में या आता है और जिन अल्फाज के शुरू आखिर में, उन्हीं अल्फाज के आखिर में वाव नून आ जाता है, तो ये होता है जी मुजारे। अब मुजारे क्या होता है, अब आप इसमें परेशान हो जाएंगे कि मुजारे क्या होता है। मुजारे क्या होता है, हम उर्दू जुबान में हम लोग 3 फेल इस्तेमाल करते हैं ना, एक माजी, हाल और मुस्तकबिल। लेकिन अरबी जुबान में 2 फेल होते हैं, एक फेल माजी होता है और एक फेल मुजारे होता है। अब फेल मुजारे जो होता है, माजी का तो आपको समझ आ गई, ठीक है ना। अब 2 फेल हमारे रह गए हैं, हाल का और मुस्तकबिल का। तो वो दोनों फेल जो होंगे, हाल और मुस्तकबिल, वो दोनों इसी मुजारे के अंदर आएंगे, हाल भी और मुस्तकबिल भी। अब हमें इसका मानी जो है वो पता चलता है इस सेंटेंस को रीड करके कि हम इसका मानी हाल में करेंगे या मुस्तकबिल में करेंगे, ठीक है। अब आप देखिए या आ गया हमारे पास, और या का मानी हमेशा आप जब भी करेंगे, या का मानी करेंगे आप वो, ठीक है। या का मानी हमेशा वो करेंगे। एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आप लोगों को बताऊंगी कि जो इसकी पहचानने के लिए है कि हम अब कैसे पहचाने कि ये आपका फेल मुजारे है। तो उसमें ये 3 ये जो वर्ड्स हैं, सॉरी 4 बनते हैं। आतईन का लफ्ज याद रखिए, ये अल्फाज, ये जो हरूफ हैं, आतईन के हरूफ, ये जब आपके शुरू में आएंगे किसी भी वर्ड के, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फेल मुजारे है। आतईन का 3 से याद रखिएगा, पीछे अलिफ लगा दीजिएगा, आतईन, ठीक है। अतईन का लफ्ज जिन अल्फाज में आता है, अतईन में से कोई एक हर्फ आएगा, सारे नहीं आएंगे, एक हर्फ, या तो फिर अलिफ आएगा, या फिर ता आएगा, या फिर या आएगा, फिर या फिर नून आएगा, ठीक है। इन तीनों में से कोई एक हर्फ अगर आएगा तो वो आपका फेल मुजारे होगा, ठीक है। यहाँ पर या आया जिससे हमें पता लगा कि फेल मुजारे है। हमजा मीम नून रह गया और वाव नून इसको जमा बनाने के लिए आ गया। तो अब अमन का मानी हमने क्या पढ़ा था, ईमान लाना। अल्लज़ीना वो लोग, अल्लज़ीना जो लोग मिनूना वो ईमान लाते हैं। फिर आगे देखते हैं जी बिल गायबी। यहाँ पे देखिए फिर से वही हरफ जर आ गया, हमने कल भी पढ़ा था ना, लाम और दूसरा हरफ जर कौन सा आ गया, बा। अब देख रहे हैं इस बा की वजह से इस लफ्ज गायब के नीचे जेर है, अलिफ लाम लग गया, इसको फिल्म इसको इसमें मार्फा बनाने के लिए इसको खास कर दिया, और हमारे पास पीछे वर्ड बच गया गाइन या और बा, जिसका मानी हो गया गैब, ठीक है। बिलगैबी गैब पर, व युकीमूना, वा हरफ अत्फ कंजंक्शन के लिए आता है, जोड़ने के लिए आता है। या हमने देखा फिर से वही बात आ गई, यहाँ वाली फेल मुजारे वाली, यहाँ पे भी फेल मुजारे का या है और यहाँ पर भी या है। और या का मानी हमने क्या पढ़ा था, या का मानी है जी वो, ठीक है ना। ये हमें या का मानी मालूम हो गया, वो है। वाउन हमें पता चल गया ये किसके लिए है जी, जमा बनाने के लिए। अब बीच में वर्ड रह गए काफ या और मीम, कय्यम यानी कि, ठीक है ना। और इसका रूट वर्ड होगा काफ वाव मीम, ठीक है। इसका रूट वर्ड होगा काफ वाव मीम, और लेकिन ये आप इसको यहाँ से याद रखिए, कय्यम यानी कि क़याम करना या सीधा, ठीक है। तो वयुकीमूना, वो कायम करते हैं, अस्सलाता नमाज, अलिफ लाम आया इसको इसमें मार्फा बनाने के लिए। अब ये जो यहाँ पर ताय मरबूता गोल ता लगी है ना जी, ये होती है इसलिए कि ये जाहिर करती है कि ये लफ्ज मोनस है। ता जो है वो जाहिर, जब भी आप कुरान के अंदर कोई लफ्ज देखेंगे जिसके साथ ऐसे वाली ता लगी होगी, बस उसको देखते साथ आप पहचान जाइएगा कि ये मोनस है, ये लफ्ज मोनस है, ठीक है। तो अब ये अस्सलाता के अंदर ये जो ताय मरबूता है ये मोनस आ गया, और अब इसके अंदर रूट वर्ड हमारा बच गया स्वाद लाम और वाव, सल्ली यानी कि नमाज, ठीक है, मेरी नमाज और नमाज, स्वाद लाम वाव इसका रूट वर्ड है नमाज। व युकीमूना, और वो कायम करते हैं, अस्सलात नमाज, व और मिम्मा, मिम्मा जो है 2 वर्ड्स को मिलाकर बना है, एक मिन था और दूसरा माँ था। अब मिन और माँ को अगर हम लोग इकट्ठा करके पढ़ें तो उनको पढ़ना मुश्किल होता, मिन माँ, नो, इट्स हार्ड। तो उस इस वजह से तजवीद के रूह से इसको मिम माँ कर दिया गया, तो जिसका मानी हो गया और उसमें से जो, ठीक है। मिन का मानी हो गया से, और जो माँ का मानी हो गया जो, ठीक है। तो मिलाकर जब हम इसको करेंगे तो इसका मानी होगा उसमें से जो, ठीक है, उसमें से जो,
अच्छा जी, उसमें से जो आगे देखते हैं, हम थोड़ा सा इसको रेज कर लें, थोड़ा सा इसमें वक्त लग जाता है। अच्छा जी, उसमें से जो एंड तक लेके चलते हैं, ये मोनस मैंने रेज कर दिया, मोनस रेज नहीं करना चाहिए था ताकि आप लोगों को जहन में रहे कि मोनस कौन से वर्ड्स होते हैं। वर्ड्स नहीं, हमने सिर्फ एक ताई मरबूता पढ़ा है। ताई मरबूता से हमें पता लगता है, गोल ता से, कि लफ्ज मोनस है। ठीक है। वमिम्मा, और उसमें से जो रज़क़नाहुम, रिस्क दिया हमने उनको, इस रज़क़नाहुम को हम थोड़ा सा देखते हैं। रज़क़ना जो है, रज़क़ना, इसको अगर हम लोग इस वर्ड को अगर ब्रेक करेंगे तो इसमें वर्ड, इस वर्ड के अंदर हम देखते हैं रज़क़ अलग वर्ड है। ठीक है। ना का मानी हमने कल पढ़ा था, ना का मानी क्या पढ़ा था हमने जी, हमने ना का मानी पढ़ा था हम। ठीक है। और ना का मानी हमने पढ़ा था हम, और इसका मानी हमेशा हम ही याद रखिएगा, इसका मानी और कुछ नहीं होगा, हम। और हम का मानी पढ़ा था उन्हें, ये प्लूरल है, एक के लिए नहीं है। ठीक है। तो रज़क़ ना हम, ना का मानी पढ़ लिया हम, और हम का मानी पढ़ लिया उन्हें। तो रज़क़ जो है वो अरबी में भी रिस्क को ही बोलते हैं। रज़क़नाहुम, रिस्क दिया, ना हमने, हम उनको, रज़क़नाहुम, रिस्क दिया हमने उनको। युनफिकून में या आया हमारे पास किसका, फ़िल मुज़ारे का, और वाव नून आ गया इसको जमा करने के लिए, और नून फा काफ इसका वर्ड बच गया बीच में से, जिसका मानी होता है खर्च करना। ठीक है। नून फ़ाक़ाफ़ नफ़क़, यानी कि याद रखिए यहाँ से कि उसका मानी हो गया खर्च करना। और उसमें से जो रिस्क दिया हमने उनको, युनफ़िक़ून, वो खर्च करते हैं, वल्लज़ीना, और वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाए। ये ऊपर हमने यही पढ़ा युमिनूना, इसलिए मैं इसको दोबारा से रिपीट नहीं कर रही हूँ। युमिनूना का वही वर्ड है, बिमा, बिमा, साथ उसके जो, उनज़िला, यहाँ पर नून जा और लाम इसका रूट वर्ड है, नज़ल यानी कि नाजिल करना। इसी के अंदर बस अलिफ, यहाँ पे ये वाला अलिफ हटाकर आप इसको यहाँ पर डाल दीजिए, आपको याद रहेगा। ये अलिफ इसको उठा के यहाँ पे डाल दीजिए, ये नाजिल हो गया। ठीक है। बिमा, साथ उसको जो, उनजिला, नाजिल किया गया, इलई का, यहाँ पर ये हमने पढ़ा था, इलई एक वर्ड है और का दूसरा वर्ड है। इलई का, तेरी तरफ, आपकी तरफ, इला, इलई, तरफ, का, तेरी, आपकी, इलई का, आपकी तरफ, बमा, और जो, जिला, यही पीछे वाला वर्ड, नाजिल किया गया, मिन कबलिक, मिन से, कबलिका, कबलिक अलग वर्ड है, और का अलग वर्ड है, तो कब्ल का, आपसे पहले। ठीक है। जो आपसे पहले, आपसे कब्ल जो नाजिल किया गया था। वाह, और बिल आखिरती, बा, बा हरफ जर फिर से आ गया, अलिफ लाम आ गया आपके पास इसका मारफा बनाने के लिए, आखिरी जो ताए मरबूता है ये आ गया आपके पास मोनस बनाने के लिए, और जो आखिर अलिफ, खा और रा हमारे पास बच गया, जिसका मानी होता है आखिरत। और बिल आखिरती, और आखिरत पर, हम वो, यूक़िनून, इसका या आ गया हमारे पास, फिल मुजारे का, वाव नून आ गया हमारे पास इसको जमा बनाने के लिए, और हमारे पास वर्ड रह गया, ये वाव जो है हरफ अतफ है, तो इस वाव की जगह पर वर्ड आता है या, और इसकी जगह पे काफ वही है, और या, काफ और नून, यहाँ पर ही देखिए यकीन बन गया है हमारा। ठीक है ना। हम वो युकीनून, वो यकीन रखते हैं। एक दफा फिर से जल्दी से इसको दोहरा लेते हैं। अलिफ लाम मीम, ज़ालिका, ये अल किताब, वो किताब है, ला नहीं, रैब, कोई शक, फीही, इसमें, हुदन, हदायत है, लिल मुत्तकीन, मुत्तकीन के लिए, यानी कि परहेजगारों के लिए इसके अंदर हदायत है। अल्लज़ीना, वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाए, युमिनूना, वो ईमान लाए, बिलगैबी, गैब पर, वो युकीमूना, और वो कायम करते हैं, अस्सलात, नमाज, वमिम्मा, और उसमें से जो, रज़क़नाहुम, रिस्क दिया हमने उनको, युनफिकून, वो खर्च करते हैं, वल्लज़ीना, और वो लोग, युमिनूना, जो ईमान लाए या वो ईमान लाए, बिमा, उस साथ उसके जो, उनसिला, नाजिल किया गया, इलैका, आपकी तरफ, वमा, और जो, उनसिला, नाजिल किया गया, मिन क़ब्लिका, आपसे पहले, वबिल आखिरती, और आखिरत पर, हम वो, यूक़िनून, वो यकीन रखते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आज का सबक मुकम्मल हुआ। अल्लाह ताला आप सब लोगों के लिए समझना आसान करे। अगर किसी को कोई बात समझ ना आए तो यू आर मोस्ट वेलकम टू आस्क मी। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।